Hello students. So today we are going to study example 3 of circle chapter, right? So example 3 I have written in front of you. So kindly go through this. PQ is a chord of length 8 centimeter of a circle and the radius is 5 centimeter. So what is more important to note is the radius is 5 centimeter and the length of the chord is 8 centimeter. The tangent at P and Q intersect at the point T. So we are drawing tangent at the point P and Q, and that tangent intersect at the point T. You have to find the length TP. Okay. So suppose I say this is a circle, this is a chord, and the name of the chord is PQ. From P I am drawing a tangent, from Q I am drawing a tangent. So both the tangent is intersecting, suppose at the point T. Okay, my dear students. And this is the center O, and this radius is 5 centimeter, and this radius is 5 centimeter. So this is the question. And PQ is chord, and through the end points of the chord P and Q, we have drawn two tangents which intersect at the point T. ठीक है? तो बच्चों आपको टू प्रूव करना है, फाइंड द लेंथ टीपी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन, टेल मी. So this is solution part. So given says that TP and TQ are tangents. Are tangents. Is it clear? And this PQ and PQ is a chord. Is it clear? So next is to find. So to find is TP equal to question mark. So next student, we are going to get into procedure. Now see carefully. A small construction you have to do. You have to join this TO. Is it clear? So here also you can say no problem. Joined TO intersecting TO at R. Suppose this point is R. Is it clear? So my dear student, first you know that TP equal to TQ. Again, this is as per theorem 10.2. ये दोनों equal है. ठीक है बच्चों? You know that you already proved triangle TPO is congruent to triangle TQO by the criteria RHS. TPO फिलहाल इसको भूल जाइए and TQO for the time being forget this. ठीक है बच्चों? So TPO and TQO are congruent, and this you have already proved. Correct? So you can say that angle PTO is equal to angle QTO. So this is my dear student CPCT. ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा. ठीक है बच्चों? चलिए अब मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ. Now if these two angles are equal, can I call TO as the angular bisector? Okay, so I can say that TO is the angular bisector of angle PTQ. Of angle PTQ. Therefore, you can say that TR is the angular bisector of angle PTQ. Angle PTQ. And do you know that
if TR is the angular bisector, if I say that angular bisector, it has one more property, it becomes the height. तो बच्चों ये हो जाता है height. Therefore, you can say that TR is height of triangle, height of an isosceles triangle PTQ. So if this is height, then obviously this angle becomes 90. Therefore, you can say that angle TRP equal to 90 degree. From this, you get that ORP angle ORP भी क्या हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री. सो अल्टीमेटली इतना मेहनत हमने करके यही प्रूव किया कि दिस इज 90 and this angle is 90. Is it clear, my dear students? Now next, मैं इसको रब कर देता हूं. तो हमने क्या किया यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए. TP equal to TQ. Therefore, triangle TPO and triangle TQO are congruent. So we got PTO and QTO as equal angles. So this says that TO cuts the angle PTQ into two equal halves. So TO is the angular bisector. Now, if TO is the angular bisector, then TR will also be the angular bisector. And in isosceles triangle, angular bisector is also called height. So this TR is the height of the triangle TPQ. If this is the height, this angle will be 90 degree. And if this angle 90 degree, this angle has to be 90 degree. So ultimately, we got our cream as ORP equal to 90 degree. Is it clear, बच्चों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट फेज में बच्चों हम ऐसे करेंगे. टीपी दिस PQ बच्चों, अभी खाली PQ को फोकस करिए. PQ क्या है सर्कल का? डोंट यू फील PQ इज chord of circle and angle ORP equal to 90 degree, and this is proved. So from this you can say that R is midpoint of PQ. R is midpoint of PQ. ठीक है बच्चों? This is as per theorem. Which theorem? Perpendicular drawn from the center to the chord bisects the chord. बस यहाँ आपको इतना ही फोकस करना है. ये सर्कल है, ये आपका chord है, PQ ये आपका सेंटर है. आपने यहाँ से परपेंडिकुलर बनाया, तो ये जो R है ये PQ को बीच से कट कर देगा. बस इतना ही है. तो यानी इतने कॉम्प्लिकेटेड फिगर से बस आपको इतना ही फिगर को देखना है. ठीक है बच्चों, मैं बार बार बता रहा हूँ, जितना फिगर दिया रहेगा आपको सभी को नहीं देखना है, उसी को देखना है जो आपको चाहिए. ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ से आपको मिड पॉइंट मिल गया. इसका मतलब ये और ये क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. एज पर द क्वेश्चन PQ 8 सेंटीमीटर दिया है बच्चों, और लेंथ हमने लिखा नहीं ना बच्चों, तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉमा PQ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड OP इक्वल टू OQ equal to 5 centimeter. Is it clear बच्चों? So therefore you can say that RP आपको मिल जाता है 4 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चों, अब खेलते हैं इन ट्राइंगल PRO. इन ट्राइंगल PRO एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री. ये हमने प्रूव कर लिया. तो बच्चों अभी आपको बस यहाँ फोकस करना है. ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर. आपको बच्चों OR निकालना है. इज इट क्लियर? तो कैसे निकालेंगे बताइए? इस ट्राइंगल में आपको लगाना है पाइथागोरस थ्योरम. सो पाइथागोरस थ्योरम में बच्चों 90 का जो ऑपोजिट होता है ये होता है हाइपोटेन्यूज. तो आई कैन राइट OP स्क्वायर इक्वल टू RP स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर. तो OP स्क्वायर की जगह में लिखेंगे बच्चों 5 स्क्वायर RP इज 4 स्क्वायर प्लस दिस इज
25 equal to 16 plus OR square. 25 minus 16 is 9 equal to OR square. Root 9 equal to OR. 3 equal to OR. OR equal to 3 centimeter. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से OR मिल गया. So this OR you can call it as 3 centimeter. Is it clear? So now but the major hunt is TP. आपको ये चीज को निकालना है, ये एंगल, ये साइड को निकालना है. ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करना है बच्चों. वेट देता हूँ, लिख लीजिए इसको. Now next is again we are going to assume let TP equal to x centimeter. Therefore बच्चों आपका TQ भी क्या हो जाएगा, x सेंटीमीटर. ठीक है बच्चों, तो ये पूरा को एज्यूम कर लेंगे x सेंटीमीटर. तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा पूरा, बताइए. ये भी हो जाएगा x और TR को y मान लेते हैं बच्चों. एंड लेट TR इक्वल टू y सेंटीमीटर. इज इट क्लियर बच्चों? चलिए अब लगाते हैं इन ट्रायंगल TPR. एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री. तो बच्चों 90 का ऑपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज. तो लिख सकते हो TP स्क्वायर इक्वल टू TR स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर. ठीक है बच्चों, TP हमने क्या मान लिया, x स्क्वायर. ठीक है बच्चों, TR को क्या मान लिया, y स्क्वायर प्लस RP कितना मिला हम लोगों को, 4 स्क्वायर. तो ये मिल गया बच्चों x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 16 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है बच्चों, अभी और एक ट्रायंगल में खेलते हैं. इन ट्रायंगल TPO, टपो इन ट्रायंगल TPO एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री. ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री. अब यहाँ पे लिख दीजिए एज पर थियरम 10.2. ठीक है बच्चों, बिकॉज दिस इज टेंजेंट एंड दिस इज रेडियस एंड एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज ऑलवेज 90 डिग्री. अब लगा दीजिए बच्चों, 90 का ऑपोजिट कौन सा बनता है बताइए, ये बनता है. तो मैं क्या लिखूंगा, TO स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर. TO को क्या लिखेंगे बच्चों, y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू OP को क्या लिखेंगे बच्चों, 5 स्क्वायर प्लस TP को क्या लिखेंगे, x स्क्वायर. इज इट क्लियर बच्चों? तो अभी ऐसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर LHS में है तो ये इसको LHS में ला देते हैं. ठीक है, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू y प्लस 3 होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2. ठीक है बच्चों, दो इक्वेशन बन गया. अब आपको ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y निकल जाएगा, बिकॉज देयर आर टू अननोन्स एंड वी हैव टू इक्वेशंस ओवर हियर, सो डेफिनेटली वी विल गेट y. तो बच्चों अब देखिए क्या करना है. अब मैं करूंगा, आप पुट करके भी कर सकते हो. देखिए यहाँ पे in the place of x square you can put y square plus 16, so everything will become y and you can get y. ठीक है, और y से आपको x निकल जाएगा. अदरवाइज आप यहाँ से y स्क्वायर निकाल के यहाँ पुट कर सकते हो. that is complicated. The simplest method is you simply do like this, 1 minus 2, 1 minus 2. तो 1 क्या है बच्चों, x स्क्वायर माइनस 2 कर देते हैं. बेस्ट मैं करता हूँ 2 minus 1, 2 minus 1. So 2 is x square plus 25 minus x square equal to y plus 3 whole square minus y square plus 16 पूरे ब्रैकेट. इज इट क्लियर? मैंने क्या किया, 2 minus 1 किया. देखिए आराम से x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है. इज इट क्लियर? सो आई एम गेटिंग 25 इक्वल टू y स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी बच्चों a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस, देखिए y स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, बहुत आराम से आंसर मिल रहा है. 25 इक्वल टू यू आर गेटिंग 6y, दिस इज हाउ मच, 7. आप करेंगे तो आंसर आएगा -7.
आप -7 को यहाँ शिफ्ट करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 32 इक्वल टू वाई। ठीक है बच्चों, तो एरो y इक्वल टू 32/6। इज इट क्लियर बच्चों? तो बताइए क्या आंसर आएगा। सो दिस यू आर गोइंग टू गेट 2 3s are 6, 2 12, तो आंसर इज 16/3। यू विल बी गेटिंग y। तो बच्चों आपको सॉल्व करके कितना आंसर मिल रहा है, y 16/3 मिल रहा है। लेकिन आपको तो y नहीं चाहिए, आपको तो x चाहिए। अब क्या करेंगे आप बताइए। देखिए यहाँ पे आपको मिला है x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे आप, पुट y इक्वल टू 16/3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 वाज x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16। तो x स्क्वायर y की जगह पे लिखेंगे बच्चों 16 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर प्लस 16। इज इट क्लियर बच्चों? नाउ this is x square. How much 16 is? 16 is 256. 256 by 9 plus 16 बच्चों। फिर आपका आ जाएगा x स्क्वायर 256 प्लस क्रॉस करेंगे तो 9 5 जार 9 6 जार 54 का 4 का 5 9 1 जार 9 144 डिवाइडेड बाई 9 एक्स स्क्वायर इक्वल टू बच्चों प्लस करेंगे तो 0 1 0 1 400/9 x इक्वल टू रूट ओवर 400/9 x इक्वल टू 20/3 प्लस और माइनस। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो x इज, देयरफॉर आप लिख सकते हो बच्चों x इज 20/3। सो अल्टीमेटली माय डियर स्टूडेंट दिस इज द आंसर। तो ऐसे करके आपको करना है, थोड़ा सा बड़ा सम है मानता हूं मैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छा से कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए यू हैव वन मोर मेथड ऑफ डूइंग दिस। वो मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ठीक है, वो मेथड क्या है, तो फर्स्ट तो सेम रहेगा। फर्स्ट आप जो कर रहे हो ना, ये दोनों एंगल सेम रहेगा, एंगुलर बाइसेक्टर तक आप सेम लिखिए, हाइट भी सेम लिखिए, 90 डिग्री भी सेम करिए। नाउ इफ यू सी, इसके अंदर में आपको ये ट्रायंगल मिल रहा है, मैं अलग से निकाल के बना रहा हूँ। So this is O, this is P, this is T, सीधा में नीचे आया बच्चों, this is R, so this is X, जरूरत नहीं X की, छोड़ दीजिए। तो ये बच्चों ये 90 डिग्री है, तो इसके अंदर से ये ट्रायंगल मैंने बाहर निकाला। अब बच्चों ये जो एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये कैसा है मैं आपको आगे टॉपिक में बताऊंगा बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम में, दैट आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, नाउ हियर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है बच्चों, तो अभी आप बड़े ट्रायंगल, दो छोटे ट्रायंगल, नाउ दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस वाज 5 सेंटीमीटर, and this you got as 4 centimeter. Is it clear? Now you see carefully, in triangle TPR and triangle TPR and OPR and OPR, this angle T, you know angle T पूरा नाम लिखते हैं बच्चों, एंगल T का नाम क्या रहेगा, PTR is equal to angle RPO, RPO। दूसरा बच्चों 90 बोल देते हैं, एंगल TRP is equal to एंगल ORP equal to 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो अब बताइए, आप इसको 90 डिग्री लिख सकते हैं ऊपर, एंगल OPT इक्वल टू 90 डिग्री। कहाँ से मिला हमको, थियरम से मिला। ठीक है बच्चों, आई गॉट इट फ्रॉम थियरम। सो देयरफॉर ट्रायंगल बीच का TRP is similar, TRP is similar to triangle, order देखिए, P and this is RO by the criteria angle, angle। Okay, so when two triangles are similar you can write the ratio. The ratio says that it is TR
बाई पी आर, आर पी बाई आर ओ, टी पी बाई पी ओ। ठीक है बच्चों, इसमें से कोई दो लीजिए जो आपका काम का है। टी आर आपको तो नहीं मालूम, टी आर छोड़ देते हैं। आर पी, yes, I will take this ratio first. RP by RO equal to TP by PO। ठीक है बच्चों, RP क्या है बच्चों बताइए फिगर में। RP is 4, RO is 3, TP we don't know, PO which is 5। क्रॉस करेंगे 5 टू ज़र, देखिए आंसर यहाँ पे रखिए 20/3 इक्वल टू TP। तो बच्चों ये रास्ता थोड़ा सा आसान है, बस आपको दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। लेकिन स्टार्टिंग में जो मैंने लिखा था बच्चों कि टी क्यू इक्वल टू टी पी, ओके लिखा था मैंने। देयरफॉर ट्राइंगल टी क्यू ओ एंड ट्राइंगल टी पी ओ आर congruent, therefore we can say that TR is the angular bisector, therefore we can say that TR is the height, okay, and later we said that OR bisect PQ, वो सब सेम लिखिए बच्चों। उसके बाद I started using Pythagoras theorem in this triangle, right? PPRO, देखिए वो स्टेप में मैं दो ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। एक ट्राइंगल है PRO, दूसरा ट्राइंगल है PTO। तो आपको वो स्टेप नहीं करके आप ये स्टेप कर सकते हो। यहाँ पे कैलकुलेशन कम है, बस दो ट्राइंगल को आपको सिमिलर प्रूव करके 3 रेशियो लिख के इसमें से 2 रेशियो सेलेक्ट करके वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? तो इसको पूरी तरह से लिख दीजिए, दोनों मेथड में करिए लेकिन एग्जाम में कोई एक मेथड प्रेफर करिए। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। और कोई डाउट है तो जरूर फोन करके पूछिएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास एंड होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।